हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजी स्पीक्स। आज हम लोगों के साथ हैं श्रेयम, ऋषिभा और राहुल, और इन तीनों से आज हम जानेंगे हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस के आंसर्स, और हम जानेंगे कि किस तरह से होम लोन लिया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में कमी होती है, किस तरह के इंटरेस्ट रेट चार्ज होते हैं, कैसा टेन्योर ले सकते हैं। पर उस सबसे पहले आइए जानते हैं श्रेयम, ऋषिभा और राहुल को। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड प्लीज इफ यू कैन गिव अस अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट योरसेल्फ। Hi, I'm Rishibha, and I've done my PGDM from Bangalore, and then I got the campus placement into HDFC Limited, and I'm in the service center, जहाँ पे लोन के एक बार लोन जब सैंक्शन हो जाता है तो उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है, उस लोन का डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहता है, और कस्टमर्स को कोई भी क्वेरीज होती है तो उनको कहीं भी जाना होता है उसके लिए, उनके एप्लीकेशन में कोई इशू होता है तो वो हम लोगों से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनका लोन किस तरह से रेडी किया जाता है वो भी हम सब सर्विस सेंटर में करते हैं। Hi all, this is Rahul Tiwari. So basically we did a postgrad from the same college and we got into HDFC Limited. So it's been like 1.5 years into this into corporate world. And what I do, I'm basically a credit underwriter. And what I do is we sanctions the loan, and जहाँ से हमारा काम खत्म होता है बेसिकली वहां से इन दोनों का काम स्टार्ट होता है। अब तीनों से एक एक टिप जानना चाहूंगा मैं। अगर किसी ने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है और ही इज एस्पायरिंग टू टेक अ होम लोन समडे, सो आज से उसको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी स्टार्ट करनी चाहिए, सो दैट जब वो होम लोन लेने जाए तो उसको डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े, जैसे उसको अपना सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करना है और भी जो भी चीजें हैं, सो दैट 3 years 5 years डाउन द लाइन अगर वो लोन लेता है वो पर्सन, सो he is at ease, उसको इतनी difficulties ना हो। Okay, so I'll mention about the credit part. Basically, when a person is starting his career, he should not start with taking small credit card loans or personal loans just to buy some goods or something. He should just survive with what his income is as of now. He should maintain his bank balance. He should slowly grow his bank balance within 2-3 years, so that when the application comes to us and when we go through the bank record, एक common monthly pattern से आपको पता चल जाता है कि customer का level of thinking क्या है, whether he wants to spend the money or whether he's of a conservative nature, or whether he wants to whether he's basically spending money, or whether he's saving, transferring funds to investments, FD, RD account. So उससे हमें पता चल जाता है कि yeah, this person wants to, if he's getting XYZ, half money he's spending towards his monthly expenditure and half is saving. So that is a good thing, what a new customer should inspire or aspire. Secondly, I would suggest not to start with quickly taking credit cards or credit card loans just to buy small consumer goods like mobile, television, etc., because that affects your CIBIL score. Thirdly, yeah, savings should happen. Customers should invest, because at the end of the day, out of XYZ loan amount, we fund a maximum of 75% or 85% or 90%. So the gap is there between the loan amount sanction and the property cost, which he has to bridge in the gap by either his own funds or by borrowing from your parents or from family, relatives, friends, which again is a obligation internally, because you anyways have to return those funds if you have borrowed from your relatives. So yeah, this is I would suggest savings, investments, should be there, so that in future that investments will help the customer to get create a good credit score and get a good sanction amount. Like most of the times हम लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें अपना क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए चलो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसे छोटी चीजें ले लेते हैं ताकि अगर हमें आगे जाके लोन लेना हो और हमें सिबिल रिपोर्ट दिखानी हो तो हमारा ट्रैक अच्छा रहेगा। तो ये हमेशा इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया, क्योंकि जितना आप सेविंग्स करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से पे करोगे अगर आप आगे जाके होम लोन लेते हैं? आपका प्रॉपर्टी कॉस्ट जितना भी होगा उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही हम आपको फंड कर पाएंगे। बाकी का पैसा आप कहाँ से लाएंगे अगर आप अभी से सारे लोन वैल्यू में से जो है आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे और अगर आप दूसरी चीजें करेंगे? उसको करने में मनाही नहीं है, आप करें वो भी,
लेकिन जितना हो सकता है आप अपना सेविंग्स करें, अपना ट्रैक रिकॉर्ड सही रखें। इवन अगर आप कोई ऐसा लोन में आपका कोई ऑब्लिगेशन है तो ट्राई करिए कि उसका जो हिस्ट्री है वो क्लियर हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो पर मंथली आपका सही से जा रहा हो, उसमें कोई डिफॉल्ट ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है होम लोन जो एक एस्पायर करता है होम लोन लेने के लिए, सेविंग्स। बट द वन थिंग दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आई बिलीव, क्योंकि सेविंग सिर्फ आप एस्पायर नहीं करते हो जब कि आपको होम लोन लेना है, जब आप होम लोन ले लेते हो, जब मान के चलो आप 60 लाख का एक होम लोन ले लेते हो 20 साल या 25 साल के लिए, उसकी आपकी ईएमआई आएगी मंथली 40,000 की ईएमआई जाएगी। तो अगर आपका वो सेविंग हैबिट आप में इनकलकेटेड नहीं होगा ना, so you will default in paying those EMIs also. So सिर्फ एस्पायर करने के लिए आपकी सेविंग्स नहीं होनी चाहिए, वो सेविंग्स आपकी थ्रू आउट होनी चाहिए कि जब आपका होम लोन रन भी कर रहा हो, so आपकी अगर 1 लाख की इनकम हो तो आप उतना सेव कर रहे हो कि आप 40,000 होम लोन EMI की तरफ जा रहे हैं, 15-20 हजार आपके अगर पर्सनल लोन या कुछ जा रहा है, और बाकी 40,000 में यार रनिंग योर हाउस होल्ड स्मूथली। तो वो चीजें होनी चाहिए। सेविंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग और एस्पायरिंग टू बाय अ होम। ओके, अभी आपने बैंक बैलेंस के बारे में बात की कि बैलेंस मेंटेन करना है और सेव करना है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंडियन सिनेरियो में देखते होंगे कि जैसे ही जॉब लगती है बच्चे अपने पेरेंट्स को या फैमिली को कुछ एक इनकम का पोर्शन ट्रांसफर करते हैं। सो वुड दैट इफेक्ट हिज क्रेडिबिलिटी और हिज एबिलिटी टू टेक द लोन? मंथ के स्टार्टिंग में मेरा बैलेंस पूरा सैलरी आई एंड मंथ एंड में वो फिर से जीरो हो गया, देन फिर से वो पूरा हो गया। सो उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या मैं किस तरह से उसको ठीक कर सकता हूँ? नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा वो, because when we scrutinize the bank statements, we observe these withdrawal transactions which is happening on a repetitive basis. So we, during a personal discussion with the customer, we question these types of transactions. So what are these transactions we are doing? If he justifies that yeah, I'm transferring XYZ amounts to FDs, I'm transferring XYZ amounts to my parents, I'm transferring XYZ amounts to some RD or recurring deposit or post office deposit. So we understand that yeah, customer has this saving habit that out of XYZ amount, if he's transferring 50% of the funds to these areas, in spite of that, the remaining 50% also, with that he is able to survive for the entire month. So it's not necessary that you shouldn't transfer any amount, but there should be a consistency that after, if you're getting some amount is there in the bank account. आप 1 रुपया बैंक at the end of the day month 1 रुपया आप नहीं रख सकते बैंक। Okay. That is a negative impact of the customer, but it's not necessary कि आप ट्रांसफर कर रहे हो तो that will impact your loan application. That will not impact your loan application, but consistency should be there. Okay. I'm really glad I asked you this question because 2 myths आप लोगों ने आज बस्ट किए हैं कि एक तो क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, आपकी लोन टेकिंग एबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए क्रेडिट कार्ड डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप अगर सेविंग्स कर रहे हैं सो दैट वुड कंट्रीब्यूट, एंड आपको अपना जो बैलेंस है उसको कंसिस्टेंटली भले कम अमाउंट से ग्रो करना जरूरी है। या I would mention also one point कि if you have not availed any loans, your credit score will be -1. So that -1 is not a bad score. Sometimes -1 can be treated as a 100% score that आपको tenure of service or your experience in the job is 10 years, and during this 10 years you have not availed a single loan. So that shows that you are able to survive with your income, and with that income you have created your savings as well. So that is a brilliant, that gives us a surety that this customer is very good and he will not gonna default in future in spite of any reason. So as Rishabha mentioned, that it's not necessary to avail credit card just to boost up your CIBIL score. CIBIL score -1 maybe, we are happily funding customers. We have funded a lot of customers. अभी हम जो बात कर रहे थे that was from point of view a salaried class person, बट जो बिजनेस पर्सन है उसकी तो ना इनकम विजिबिलिटी है, ना ही उसका आप रिटर्न से कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है। अगर मैं अपने फादर का ही एग्जांपल लूं, उन्होंने आज तक कोई लोन नहीं लिया है एंड उनका बैंक स्टेटमेंट में जो भी बैलेंस होगा सो होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी उन्होंने एक्यूमुलेट किया, बट आप उनकी आईटीआर से भी ऐसा जज नहीं कर सकते कि उनकी इनकम बहुत अच्छी है, बिकॉज बिजनेस क्लास में धीरे धीरे कंप्लायंस की तरफ एक पर्सन जाता है, वो भी अगर जो प्रोफेशनल है, जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवाइजर उनको लेके जाए तो सो
उस पर्सन को कैसी डिफिकल्टीज आती हैं और वो पर्सन क्या कर सकता है अपनी लोन लेने की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज उनकी आईटीआर कुछ नहीं दिखा रही होगी आपको और उनकी सेविंग्स या ऐसा कुछ भी नहीं हो. Yeah, that comes under self-employed category. Under self-employed, when these circumstances comes, we initiate a site visit of the, so that अब अगर आपका ऑफिस है, गोडाउन है, आप जिसको मॉर्गेज करके you're taking a loan, और आप इस गोडाउन के को बता रहे हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम, so we generally ask for books of accounts, ITRs, bank statements. If you are right that ITR does not always gives a true picture of your income, because we all know that ITR may the gross total income is obviously whatever is actual reflect nahi karta hai. So one of the things is we do initiate a site visit of the report. We understand the market scenario, we understand the surrounding rate, and based on, we do a discussion, try to discuss with other neighboring stores also, that how is this shop or this warehouse performing. Based on our market feedback also, then we interact with the customer to understand what is the actual picture. So in a nutshell, अगर एक पर्सन है, उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया है, या आईटीआर उनकी फाइल तो करना कंपलसरी है, 2-3 साल की आईटीआर होनी चाहिए, बट अगर ITR is mandatory, 3 years ITR is mandatory. 3 years, yeah, minimum 3 years ITR is mandatory. So 3 years का ITR तो उस पर्सन को चाहिए, बट अगर उसका क्रेडिट स्कोर नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, स्टिल अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी है तो he can get the loan. And terms भी more or less सैलरीड क्लास वाले रहेंगे, या टर्म्स थोड़े से I would say इतने अट्रैक्टिव नहीं रहते जितना कोई एक सैलरीड क्लास पर्सन को बैंक या कोई हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है. टर्म्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. सेल्फ एम्प्लॉयड केसेस के लिए यूजुअली इंटरेस्ट रेट्स आर क्वाइट हाई. उन लोगों को तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल इंटरेस्ट रेट्स पे नहीं मिलेगा, उनका मे बी प्रोसेसिंग फीस भी हाई रहेगा, उनका इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े हाई रहेंगे. वी माइट ऑफर देम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. हम उनको फ्लोटिंग ऑफर नहीं करेंगे कि योर इंटरेस्ट रेट विल बी फिक्स्ड फॉर 3 years एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू फ्लोटिंग. सो ऑल दीज कंडीशंस आर देयर, जो कि हमें सब कुछ देखना पड़ता है सेल्फ एम्प्लॉयड केसेस को प्रोसेस करने से पहले. रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू अ सैलरीड पर्सन. सेल्फ एम्प्लॉयड में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, so that is why the rates are high, और the fixed उनको initially ऑफर करते हैं, प्रोसेसिंग फी उनकी हाई होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होती है उनकी. सैलरीड की बेसिक क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि आप सेविंग क्या करते हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने साल से हो, आपकी सेविंग पैटर्न क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या, खत्म. ज्यादा से ज्यादा आपके एंड यूज ऑफ द फंड्स क्या है, यही सब बेसिक होती है. बट सेल्फ एम्प्लॉयड में क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होती है. सो सबसे पहला क्वेश्चन, आप तीनों में से जो भी आंसर करना चाहे कर सकते हैं. जब लोन लेने जाते हैं सो एक जनरल माइंडसेट रहता है कि let's say if it's a 20-year tenure, so a 20 lakh rupee loan, the customer would end up paying 40 lakh or 45 lakhs in the end. So एक स्टार्टिंग में ही मेंटल रोड ब्लॉक आ जाता है कि मैंने 20 लाख का लोन दिया है और मैं 40 लाख रुपए वापस कर रहा हूँगा. सो उसको कैसे ओवरकम करें, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल सेंस में देखें, टर्म्स में देखें, तो अगर आप एफडी भी करवाते हैं तो वो 7 से 8 साल में डबल हो जाएगी. सो उसी सेंस से जाया जाए तो आपका होम लोन का भी उतना रिपेमेंट बनता है. बट किस तरह से अगर कस्टमर को ये बात समझनी हो, एक्सेप्ट करनी हो, तो आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे जिससे उसके लिए वो एक्सेप्ट करना इजी हो जाए? एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जो मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि जो कस्टमर सोचते हैं ना कि मैं इनिशियली सैंक्शन में 20 साल का लूंगा, बट दिमाग में उनके पीछे चलता रहता है ना कि मैं इस लोन को प्री क्लोज कर दूंगा, मैं प्रीपे करूंगा. मतलब मैं भी सर्विस सेंटर में हूँ ना, तो सारे कस्टमर्स बोलते हैं हाँ मेरे को सैंक्शन तो 20 साल का मिल गया, बट मैं ये लोन तो 5 साल 6 साल में क्लोज कर दूंगा. तो उनके मतलब यहाँ के जितना से मैं मिला हूं ना, उनके जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू कभी ये नहीं रहता कि मेरे को ये लोन जितना सैंक्शन टर्म हुआ है मेरे को उतने साल ये लोन रन करना है लोन. आई वांट टू प्री क्लोज इट, बिकॉज जैसा कि आपने बोला इट्स एक्चुअली ह्यूज कि अगर मैं 60 लाख का लोन ले रहा हूँ प्रिंसिपल, तो मैं कम से कम 1 करोड़ 10 लाख चुका रहा हूँ. इंटरेस्ट कंपोनेंट इज ह्यूज, सो दैट इज व्हाई. बट एक चीज हम इसको ये बोल सकते हैं कि आप कर रहे हो बट आप एक एसेट डेवलप हो रहा है, ठीक है. आप एक एफडी करते हो, दैट इज ओके, बट एक एसेट जिसका वैल्यू आज 60 लाख है, आज से 5 साल बाद देखो या 10 साल बाद देखो, उस 60 लाख का कहीं ना कहीं शायद 80 लाख या 90 लाख हो जाएगा एसेट का वैल्यू. आई डोंट थिंक कि ऐसे स्टेज में एसेट का वैल्यू, अगर आपकी अच्छी जगह पे एक एसेट या बिल्डिंग हो तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी. आई डोंट थिंक सो. तो अगर इस तरीके से कस्टमर इस चीज को लेना स्टार्ट करें कि वो एक प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसको वो रेंट पे लगा देंगे,
और जो रेंट आएगी उस रेंट से उनकी ईएमआई चल जाएगी, तो उनपे कुछ उनको जो अपफ्रंट जो एक ओसी पे करना था, ओन कंट्रीब्यूशन 10 लाख या 15 लाख, वो उनका इनिशियल झटका लगता है. बाकी वो दे जस्ट पे इट ऑफ थ्रू द रेंट whichever they are getting, and meanwhile through their salary they save up something and try to pre-close or prepay the loan. तो इस तरीके से अगर आप सोचते हो ना, तो 5 साल 6 साल में आपका डेट कवर हो जाता है, प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है, देन यू बिल्ड अप एन एसेट. So there's a popular concept called OPM, other people's money. So अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होम लोन कैन बी यूज्ड इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं, आप उससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं. अगर किसी ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स इस बारे में डिस्कशन आ रहा है कि किस तरह रियल एस्टेट से अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं. 3 चीजें हैं. अगर एक लेमैन है जो होम लोन लेने जा रहा है, सो उसको 3 फैक्टर्स वो सोचता है कि क्या टेन्योर रहना चाहिए एक आइडियल होम लोन का, क्या इंटरेस्ट रेट्स वैलिड हैं, और कुछ फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट का कुछ कंसेप्ट होता है, तो उन दोनों में से मुझे कौन सा प्रेफर करना चाहिए. तो इन तीनों क्वेश्चंस का अगर आप शॉर्ट में आंसर दे पाए एक एक करके. I think rates तो अभी we are going with floating only. Yeah. So there is no fixed rate का concept. Regarding tenure, is what customer somehow he knows that with my income I will be able to get the tenure of 15 years or 20 years. But at the time of sanction the loan, what we credit underwriters, we do a personal discussion with the customer that this is your gross salary and this is your net salary. So with your net salary, will be the EMI. So you're left with this much funds. So will you be able to run your household with this much funds? Because you have a family, you are married, you are single. If you're married, you have a certain obligations also towards your wife, towards your children, towards your parents. And also what we see, where he is staying, is he already staying in a self-owned house or is he already staying in a rented house? So that are also the risk factors which we look into while negotiating on the tenure. Yeah. See, it's not like a compulsion that you have to go for a 15-year term loan or you have to go for 10-year, 20-year. ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो हम लोग डिसाइड करते हैं जब उनका लोन एप्लीकेशन हम लोग प्रोसेस करते हैं. अब मैं ऐसे किसी बैंक में जाती हूँ and I'll say I want a 20-year loan क्योंकि मैं इतना EMI ही पे कर पाऊँ. I can pay only 20,000 per month, so it will be valid कि ठीक है. ऐसे 20 year तक उसको प्रोसेस करते हैं. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री से और मेरे इनकम डॉक्यूमेंट से वो चीज जो है वो प्रूफ हो कि नहीं मैं उतना पे कर पाऊंगी. So then the role of credit and the credit person comes into the picture, telling कि नहीं आप 15 साल का नहीं, आप सिर्फ 10 साल का ही जो टर्म है वो ले पाएंगे. तो इन सब चीजों के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ये ऐसे ही हम लोग यूं ही नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आपका टर्म कितना होगा या आपकी EMI कितनी होगी. Sometimes some customers are adamant कि no, I with this XYZ amount of salary I want 15 years even though he is not eligible for 15 years. But then we do a discussion as to how will you run your household. Then he comes with other sources of income that I have getting rental income from XYZ. I sell this property XYZ. So that is the point, and that is the point where we come to a conclusion. Okay, the customer can suffice a 15-year-old tenure even if he is not eligible for that. That are the factors which comforts us, and then we take a risk, and that is all the factors which mitigates our risk. And then we proceed with the requested tenure of by the customer. But जब हम प्रीपेमेंट की बात करते हैं, because naturally आज जो लोन की मेरी EMI फाइनल हुई है वो मेरी existing इनकम से हुई है, but going forward in 3 years, 5 years time, इनकम naturally बढ़ेगी. So accordingly मेरा पेमेंट की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी. So प्रीपेमेंट के टर्म्स कैसे रहते हैं? क्या कोई चार्जेस पे करने पड़ते हैं? कोई ऐसा टेन्योर है जिससे पहले आप प्रीपेमेंट नहीं कर सकते और कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट्स रखते हैं? ये क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन, अगर मुझे लोन एक बैंक से क्लोज करवा के दूसरे बैंक में जाना है तो उसके लिए क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या कैसे कर सकते हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन. ऐसा नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन. किसी इंस्टीट्यूशन में प्रीपेमेंट के चार्जेस होते हैं. कुछ लोग 0.1% ऑफ जितना आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो चार्ज करते हैं. कुछ इंस्टीट्यूशंस कुछ भी अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं. सिर्फ नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन कि उन लोगों ने अपने क्या रूल्स बना के रखे हुए हैं. अगर आप यूजुअली होता ऐसा है कि जब आपने लोन लिया है, आफ्टर 6 months यू कैन स्टार्ट मेकिंग द प्रीपेमेंट्स. बिफोर दैट यू कैन नॉट रीपे. तो एक वो कंडीशन रहता है. बट चार्जेस का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है. यू हैव टू शो अस द बैंक स्टेटमेंट एज अ प्रूफ कि आपके पास वो सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आया.
क्योंकि वो चीज इलीगल भी हो सकती है, तो वो हमारे ऑडिट पर्पस के लिए रहता है कि हमें वो चीज चेक करनी पड़ती है। सो उसका प्रीपेमेंट का ऐसा कुछ नहीं होता है। और सेकंड चीज ये होती है कि अगर कस्टमर हमारे सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उन लोगों को मार्केट में कहीं और बेटर इंटरेस्ट रेट का चांस मिल रहा है, सो बैलेंस ट्रांसफर में भी ऐसा कुछ बहुत बहुत बड़ा ऐसे कुछ डिफिकल्टी नहीं होता है जो कस्टमर को फेस करना पड़ता है। बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको सिर्फ एक फोरक्लोजर लेटर लेना होता है और सिर्फ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि हमने दूसरे इंस्टीट्यूशन में क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे। एक बार आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो आप इजीली दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। और ये हर जगह के लिए कॉमन रहता है, उनके लिए कोई अलग से फीस नहीं होती है जो उनको पे करनी पड़ती है। इनफैक्ट उन लोगों की प्रोसेसिंग फीस भी कम होती है। अगर एक कस्टमर कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन से हमारे पास आ रहा है तो उस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम एक बहुत मिनिमम फीस चार्ज करते हैं कि नहीं, आप उस इंस्टीट्यूशन को छोड़िए, आप हमारे पास आइए, हम आपको उतना अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे। तो इन सब सिचुएशन में डॉक्यूमेंट्स भी बहुत कम रहते हैं, प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम रहती है और लाइक विद इन लेस देन 10 to 15 डेज आपका प्रोसेस भी इजीली हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सो 2 चीजें हैं अगेन। एक आपने बताया कि आपको स्टेटमेंट ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा अगर प्रीपे कर रहे हैं कि ये इनकम कहाँ से आया। सो दैट हैज टू बी थ्रू बैंक रूट, बैंकिंग चैनल रूट, राइट? उसके फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है या अगर आपने चेक से पेमेंट किया है दैट वुड सफाइस? प्रीपेमेंट सिर्फ चेक के थ्रू ही होता है, हम कोई और सोर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Right. और चेक्स भी सिर्फ आपके अकाउंट से होना चाहिए। इफ यू आर देयर इन द लोन, इफ यू आर अ बोरोवर और अ को-बोरोवर, so we can accept the check from your account only. It cannot be from your mother, father, or any other person, any other third party. We won't accept. Okay. The only proof which we require is the bank statement. Because अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है तो हम बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो किस सोर्स से आया है। So just एक वो एक ऑडिट पर्पस के लिए हमारे पास रहता है। एंड ऑल्सो इफ यू आर टॉकिंग टू कस्टमर, आपके पर्सनल डिस्कशन के बेसिस पे somehow you will get to know कि फंड्स कहाँ से आए। The reason why I am stressing on this question is because I've seen many business families. The salaried class लोग जो हैं वो जनरली इंटरेस्ट ले लेते हैं। आपके अगर कस्टमर पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो उसमें सैलरीड क्लास लोग ज्यादा होंगे, बिजनेस क्लास लोग होम लोन के लिए कम लोग मिलेंगे। तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि अब अगर किसी को प्रीपे करना है, जनरली आप पाएंगे कि उसने कैश डिपॉजिट किया होगा देन प्रीपे कर दिया होगा, एंड अगर आप उससे फिर उसका डिटेल्स मांगेंगे सो इट माइट बिकम ट्रबलसम फॉर हिम। सो उस तरह के चैलेंजेस के लिए उसको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि व्हाट शुड आई आंसर इन केस मैं प्रीपे करने जाता हूँ, तो ये इनकम का सोर्स क्या है, दैट ही विल हैव टू आंसर, राइट? Yeah, right. That is the reason we don't accept cash, because cash का आप ऐसे कोई प्रूफ नहीं पता लगा सकते हैं। कैश आपका किसी भी सोर्स से आ सकता है, बट इफ यू आर पेइंग थ्रू अ चेक देन दैट इज समहाउ वेरी सिक्योर्ड। आपको पता लग सकता है कि पेमेंट कहाँ से आया था और कहाँ से। राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फीस जैसे जो चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फीस या फाइलिंग चार्जेस हैं और इंटरेस्ट रेट है, ये दोनों तीनों चीजें नेगोशिएबल होती हैं क्या, या मैं बैंक से जब बात करके इसको कम ज्यादा कुछ करवा सकता हूँ, या वो फिक्स ही रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं? सो क्या कस्टमर को थोड़ा सा अपना लक ट्राई करना चाहिए इन चीजों के पीछे? कुछ सेविंग्स हो सकती है या ये थोड़ा रिजिड रहते हैं और इसमें चेंजेस नहीं होते हैं? So I think rate of interest is negotiable based on your CIBIL score. So based on your CIBIL score and based on the profile, we can, if it's a very good customer, we can give him a better rate as what we are offering to others within the same bracket of CIBIL score and the loan amount. Okay. Regarding processing fee waves, the processing it is there, but like again, it depends on the track record of customer. Basically it depends on case to case basis. For example, अगर आप self employed cases की बात करें, उनमें usually processing fees बहुत high रहता है, 50,000 plus taxes, 1 lakh plus taxes, क्योंकि उन लोगों का जो statements होता है वो सब analyze करने का तरीका अलग होता है, और उन लोगों के लिए भी hire chartered accountants to do that, because we being only MBAs, we do not have that specialization कि हम उनका statements जो है वो उस तरीके से analyze कर पाए। So वही चीज होती है कि प्रोसेसिंग फीस हर बार नेगोशिएबल नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में नेगोशिएबल होती है अगर कस्टमर हाई प्रोफाइल कस्टमर है, और if it's a balance transfer case, if we are getting the case from some other institution, then processing fees is definitely negotiable. उनको सिर्फ ऐसा मिनिमम 2360 पे करना है, बाकी का 3000 we can waive it off. So इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं तो फ्लोटिंग है तो नेचुरली वो अगर आरबीआई रेट्स बढ़ाता है घटाता है तो उसके अकॉर्डिंग रेट्स आपके चेंज होंगे। सो एट द एंड कस्टमर को तो मार्कअप जो है
जो बेस रेट है उसके ऊपर जो मार्कअप है वही आपसे नेगोशिएट करना है ना। कस्टमर को मार्कअप आपसे नेगोशिएट करना है, वही कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, या इंटरेस्ट रेट, बिकॉज कस्टमर्स को पता नहीं होता तो वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट ही नेगोशिएट करते हैं, बट एक्चुअल में वो लोग मार्कअप ही नेगोशिएट कर रहे होते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसे ही होता है। हम उस कॉन्सेप्ट को कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब कस्टमर हमसे लोन लेता है, हमारा एक रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट होता है, जैसे 16.2 करेंटली चल रहा है मार्केट में, तो वो रेट जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है मार्केट। वो हमारा मार्कअप रेट है जिसको हम स्प्रेड रेट बोलते हैं, वो कभी भी नेगोशिएट नहीं करता है, वो फिक्स्ड रहता है। आप एक बार लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे तो आपको आरपीएलआर रेट मिलेगा, उसमें से हम आपको कोई एक मार्कअप वैल्यू देंगे जो कि एज अकाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा कि हमने आपको 8% दिया, 7% दिया, मार्केट के हिसाब से आपका एक इंटरेस्ट रेट। अब अगर 3 महीने बाद मार्केट में कोई चेंजेस आते हैं, एनएचबी कोई चेंजेस करते हैं, हमारे कंपेटिटर्स चेंजेस करते हैं, उसके बेसिस पे हमारे इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं। तो हमारा जो आरपीएलआर वैल्यू होता है वो फ्लक्चुएट करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता नहीं होता है और वो सोचते हैं कि नहीं, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होना चाहिए। बट एक इंटरेस्ट रेट के पीछे 2 बहुत बड़े कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज आरपीएलआर एंड स्प्रेड रेट। तो अगर हम किसी कस्टमर का इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो हमको उनका स्प्रेड रेट चेंज करना पड़ता है, और वो स्प्रेड रेट चेंज करने के लिए बहुत बार उनको फीस भी पे करनी पड़ती है। इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। और कस्टमर्स को एक क्वेरी हमेशा होती है ना कि आरबीआई ने रेपो रेट्स रिड्यूस की तो फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों रिड्यूस कर रहे हो? तो कस्टमर्स को ये चीज नहीं समझ आती है कि रेपो रेट्स हैज नथिंग टू डू विद होम लोन रेट्स, ना कि एचडीएफसी के होम लोन रेट्स, इवन नॉट इवन एनी पीएसयू के होम लोन रेट्स। रेपो रेट is the rate at which RBI lends funds to the commercial bank. Right. Yeah. So it has nothing to do with the home loan rate. But seeing the market scenario, जब रेपो रेट कम होता है तब उसके इर्द गिर्द जो भी लोन्स होते हैं, और भी कार लोन हो गए, पर्सनल लोन्स हो गए, होम लोन्स हो गए, seeing the current market scenario because it's a competitive market. अगर एक बैंक कम कर रहा है, if being in the market you have to survive. So as I said कि हम एसबीआई से तो कम्पीट कर नहीं सकते हैं। So अगर रेपो रेट कम हो रही है तो हमें भी अपना फिर आरपीएलआर कम करना पड़ता है। As per that we charge the conversion fee जो ऋषभ ने बोला। So repo rate is not linked with home loan rate. So this is the very big confusion that the customer. If you are not like confident with that rate, if you are not agreed कि ठीक है मुझे तो मेरा सिर्फ 7.3 से 7.1 पे आया है and you're offering 6.85 to the current customer जो आपसे नया लोन लेने के आ रहा है, तो उस केसेस में हमें उनका स्प्रेड चेंज करना पड़ता है। उस केसेस में जो है वो फीस जो है वो एप्लीकेबल होती है। सारे केसेस में ये फीस एप्लीकेबल नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको एवरी क्वार्टर आके हमको फीस पे करनी पड़ेगी और तभी हम आपका इंटरेस्ट रेट चेंज करें। तो इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक पर्सन जब लोन लेने के बारे में सोचता है, सो हाउसिंग लोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट लायबिलिटी आई वुड से जो एक पर्सन टेकअप करता है। तो आपको अभी क्या लगता है कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन हाउसिंग लोन नहीं ले पाता? क्या ऐसी प्रिपरेशंस हैं, बी इट ऑन आईटीआर फ्रंट, उसके टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं हो रखे होते हैं, या उसकी इनकम स्टेटमेंट ठीक नहीं है, या उसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या ऐसी कमी आती है जिसकी वजह से जनरली लोन्स रिजेक्ट हो जाते हैं? Basically, the loan gets rejected. One of the most prior parameter is what we look into is the banking. Secondly, what we check is the person's repayment track and the person's intention. So these are the basically 3 things which we check into any customer. Repayment track हमें सिबिल से पता चल जाता है। सिबिल में उनका स्कोर, बीट एनी स्कोर, बट उनका रीपेमेंट ट्रैक, उनका प्रायर लोन्स का कैसा रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई डिफॉल्ट रहा है, एंड अगर डिफॉल्ट रहा है तो किस रीजन से डिफॉल्ट रहा है। बिकॉज अच्छे कस्टमर्स का भी कभी ना कभी डिफॉल्ट हो जाता है। इट इज नॉट दैट कि एवरी कस्टमर का रीपेमेंट ट्रैक बहुत गुड रहेगा। कभी ना कभी कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होता है, कोई पर्सनल लोन डिफॉल्ट होता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड दैट, व्हाई वाज इट इन अ डिफॉल्ट. And if we feel that the intention is good, if the banking is good, if overall he has the repayment capacity to pay via his income, then we can proceed with the sanction. But agar ye sab parameters fulfill nahi ho rahe, so then we have to say sorry to the customer and to reject the loan. And adding to what Rahul said, कि एक सक्सेसफुल होम लोन होने के पीछे मतलब एक कस्टमर का इंटेंशन है कि वो बाई करना चाहता है प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी को बाई करता है। इस प्रोसेस के बीच 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रेडिट, लीगल और टेक्निकल। मतलब कस्टमर का क्रेडिट अच्छा होना चाहिए, उसका क्रेडिट में आप इनकम बोल लो, उसका रिपेमेंट ट्रैक बोल लो, वो सब अच्छा होना चाहिए। सेकंड इज लीगल, कि जो प्रॉपर्टी वो सिलेक्ट कर रहा है
उस प्रॉपर्टी का लीगल चेक, बैकग्राउंड चेक सब फेयर एंड स्क्वायर हो, सीधा टेक्निकल. ही शुड बी अवेयर कि मैं इस प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ और इस प्रॉपर्टी के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है. मैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, मैं इसको एज अ सेल्फ ऑक्यूपेशन ले रहा हूँ. ये 3 चीज अगर क्लियर है, तो आई थिंक दैट कैन वेरी वेल सम अप द रीजन टू बाय हैव अ होम. ओके. जब हम लोग इंटरेस्ट रेट्स लुकअप करते हैं, अलग अलग बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं, सो सबका एक बेस रेट होता है, उसके ऊपर मार्कअप होता है और हर एक बैंक का डिफरेंट मार्कअप रहता है. सो हम लोग देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं, पीएसबीज हैं, जैसे एसबीआई है, तो उनका इंटरेस्ट रेट सबसे कम रहता है. देन जो लोग हैं वो किसी और बैंक की तरफ प्रेफर करते हैं. इन दी एंड अगर कुछ नहीं मिलता तो DHFL है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा हैं. सो ऐसा है कि उनके रिस्क अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या? डॉक्यूमेंटेशन वो लोग थोड़ा सा ज्यादा एकोमोडेटिव होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्या रीजन है कि मेरा लोन SBI में रिजेक्ट हो जाएगा या HDFC में पास हो जाएगा या HDFC में रिजेक्ट होके DHFL में पास हो जाएगा? कि जो इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं कि SBI के कम है और HDFC कंपैरेटिवली ज्यादा, ये चीज कस्टमर्स को पता है. राइट. ऐसा नहीं कि कस्टमर्स आर नॉट अवेयर, कस्टमर्स आर अवेयर कि हम SBI से कभी कम्पीट नहीं कर सकते हैं. मतलब कस्टमर्स आते हैं हमारे पास, भी बोलते हैं कि यू कैन नॉट कम्पीट विद HDFC, बट द रीजन वी आर स्टिकिंग कि आपकी सर्विस अच्छी है, आपके लीगल और टेक्निकल जो प्रॉपर्टी के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होते हैं वो आपके बाकी इंस्टीट्यूट से काफी बेटर है. So it's not that people are not aware; they are very well aware that we cannot compete with SBI, but still they are sticking with us because of the service and the type of atmosphere we create for them to feel safe and secure with us. So I guess it was a very informative session. So I would again thank you all three of you, and it was really a pleasure to have you all on this video call. Thank you. Thanks a lot. Pleasure was all mine. Thank you. Thank you so Thank you, much. Thank you Gaurav. so much for inviting. Thank you. Thank you for inviting us actually.